परमेश्वरଙ୍କ ଲୋକ ମୂଷାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। हे ପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇ ଆସିଅଛ। ପର୍ବତଗଣର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଓ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀ ଓ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବଠାରୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମ୍ଭେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଧୂଳିରେ ଲୀନ କରୁଅଛ, ପୁଣି କହୁଅଛ, ହେ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣ ଫେର। କାରଣ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଗତକାଲିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ରାତ୍ରିର ଏକ ପ୍ରହରର ସମାନ। ଯେପରି ପ୍ଲାବନରେ ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭସାଇ ନେଉଅଛ। ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ସେମାନେ ବଢ଼ନ୍ତା ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ। ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ତାହା ସତେଜ ହୋଇ ବଢ଼ଇ, ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ତାହା କଟାଯାଇ ଶୁଖଇ। କାରଣ ତୁମ୍ଭ କ୍ରୋଧରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଷୟ ପାଉ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ କୋପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉ। ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ଆପଣା ସମ୍ମୁଖରେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପାପ ଆପଣା ମୁଖର ଦୀପ୍ତିରେ ରଖୁଅଛ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସକଳ ଦିନ ତୁମ୍ଭ କୋପରେ ବହିଯାଏ। କଥିତ କାହାଣୀ ପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ବର୍ଷ ସମାପ୍ତ କରୁଥାଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆୟୁର ପରିମାଣ 70 ବର୍ଷ ଅବା ବଳ ସକାଶୁ 80 ବର୍ଷ ହୁଏ। ତଥାପି ତହିର ଗର୍ବ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର, କାରଣ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବହିଯାଏ ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଡ଼ିଯାଅ। ତୁମ୍ଭ କ୍ରୋଧର ପ୍ରବଳତା ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭୟ ପ୍ରମାଣେ ତୁମ୍ଭର କୋପ କିଏ ବୁଝେ? ଯେପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଶିଷ୍ଟ ଅନ୍ତଃକରଣ ପାଇପାରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନର ଗଣନା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଫେର। କେତେ କାଳ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ। ପ୍ରଭାତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ଦୟାରେ ତୃପ୍ତ କର। ତହିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାବଜୀବନ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା। ଯେତେ ଦିନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଅଛ ଓ ଯେତେ ବର୍ଷ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଅଛୁ, ତଦନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କର। ତୁମ୍ଭ ଦାସଗଣ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର କର୍ମ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ମହିମା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାୟୀ କର। ହଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ଥାୟୀ କର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଖୋଲି ବସିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ ଏବଂ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡିଓ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଝିଅ ଗୁଜରାଟରୁ ସେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ମେରିଲିମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଆରାଧନା କରିବେ। ଆଉ ଝିଅ ମେରିଲିମା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନମସ୍କାର। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रेज द लॉर्ड। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆପଣ ଆରାଧନା କରିନେବେ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। इस सुंदर प्रभात के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास जीतू कोरा सर को भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मेरे जीवन में ऐसा अनुग्रह परमेश्वर के द्वारा जो दिया कि सुबह उठने के समय परमेश्वर की आराधना करने का अनुग्रह। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु का स्तुति करें, उसकी आराधना करें। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए, हालेलुया। हम पिछले 2 दिन पिछले हमने यीशु का जन्मदिन मनाया, लेकिन हमारे जीवन में यीशु का जन्म रोज होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, हालेलुया। इधर तेरे आकार आया मसीह जगत में, पापों को करने ना आया मसीह जगत में,
पापों को करने नाश। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुले सब पाप। धो लो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। वापस आता मेरे प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। आशा मेरी अब तो यही है, यही तो मेरे पास। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती ये आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। हर दिन होंगे साथ यीशु की, खुशी और शांति आराम। आएगा वह लेने तुमको, सदा तू रहना त्याग। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत हालेलुया। ये धरती आकाश, आया मसीह जगत में, पापों को करने नाश। हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर अवसर के लिए। प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में अगुवाई किया है, अनुग्रह किया है, इसलिए महान परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए और एक गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुखों में, रोग में और मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। दुखों में, रोग में, हर मुसीबत में, मेरे मन वही काफी है तुझे। जिंदगी के सफर है कठिन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आते हैं अवरोध पल छिन, जिंदगी के सफर है कठिन। आते हैं अवरोध पल छिन,
दिन में मेघ स्तंभा, रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुखों में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुखों में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, हालेलुया। मेरे दुखों का होगा दामन, आंसू पोंछेगा जो आंखों नम। मेरे दुखों का होगा दामन, आंसू पोंछेगा जो आंखों नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, संग उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुखों में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुखों में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। वही आदि वही अंत है, दिव्या प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्या प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदन के योग्य है। हालेलुया। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदन के योग्य है। प्रभु का धन्यवाद हो, हालेलुया। हालेलुया। वो 10,000 में एक मात्र है जो कि स्तुति वंदना के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। आइए और एक गीत, समर्पण का गीत गाकर प्रभु का धन्यवाद करें। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, उसके तुल्य कोई नहीं। हालेलुया, हमारे रोगों को वो चंगा करता है, हमारे पापों को वो क्षमा करता है। हम कुछ भी नहीं उसके लिए, हालेलुया, फिर भी वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होती है, हम प्रभु से मौत मांगते हैं कि प्रभु हमें मौत क्यों नहीं दिया, हमें मर जाना अच्छा है। लेकिन प्रभु यीशु हमें और एक दिन उसकी आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए ये सौभाग्य दिया है। इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु यीशु जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और हालेलुया समर्पण का गीत गाकर हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राह पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए,
कहे तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुझे खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने साथ मेरा। क्यों करता मुझसे तू इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम प्रभु को, हालेलुया, प्रभु से दूर हो जाते हैं, फिर भी प्रभु हमें, हालेलुया, अपने हाथों से पकड़कर वो हमें चलाता है। हमारे, हालेलुया, हम मार्ग से भटक जाते हैं, लेकिन भी प्रभु हमें नहीं छोड़ता। अपने हाथों से पकड़कर वो अपने मार्ग में ले चलता है। हालेलुया, वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। हम क्या है उनके लिए? कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने हमें इतना प्रेम किया। हालेलुया, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते प्रभु। हम विश्वास करते प्रभु, आराधना महिमा आपको मिला परमेश्वर खुदा। हालेलुया, इस सुंदर दिन और एक दिन आपने अनुग्रह के साथ हमें जीवन जीने का अवसर जो दिया, आपका धन्यवाद करने का अनुग्रह आपने जो हमारे जीवन में दिया, हमारे लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस जूम के माध्यम में जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु यीशु, हर एक को आप आशीष कीजिए। जो दुख में है, निराशाओं में प्रभु, आप उन्हें आशा दीजिए, सांत्वना दीजिए प्रभु। हालेलुया प्रभु, हर एक के आत्मिक आंखों को खोलिए, ताकि प्रभु आपको देख नहीं पाए। आपके हर एक हृदय को खोलिए, आपके हर एक बातों को परमेश्वर जानने का अनुग्रह उनके जीवन में मिले परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो दास आपके द्वारा वचन लेकर आ रहे प्रभु, उनके जीवन को, उनके मनों को भी आपके हाथ में समर्पित करते, ताकि हम सुनकर आनंदित के साथ प्रभु आपके पीछे चलने वाले बने। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, जो दीदी होस्ट कर रही है परमेश्वर, उससे भी आप, हालेलुया, आप ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए, हर एक बातों में अगुवाई करने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, शुरू से लेके अंतिम आशीर्वादी बोले जाने तक प्रभु आप हमारे साथ रहे परमेश्वर। आप हमारे वचन के द्वारा, बहुत सारे बातों के द्वारा बोलिए, बातचीत कीजिए प्रभु यीशु। धन्यवाद करते प्रभु, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद सिस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आपण सुंदर सुंदर गीत गाई आमानकु प्रभुंकर सानिध्य वर्ती कराई अछंती, प्रभुंकर निकटवर्ती कराई अछंती। प्रभु आपणको आपणको परिवार को बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। आमे सिस्टर, सब मेरा बेटा का तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए भी आप सब प्रार्थना कीजिए। ठीक है, आमे प्रार्थना करिबा पाई जिबा। आउ आमर सिस्टरଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସେ ଆରାଧନା କରି ଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯେପରି ଆମେ କୁଶଳରେ ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଗଜପତିରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପରିଛା ମହାଶୟ ଭମ୍ବରପୁରରୁ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢ଼ାଇଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित समस्त मोर आंतरिक नमस्कार। आसंतो आमने प्रार्थना करिबा। धन्यवाद दउछि प्रभु, धन्यवाद दउछि तुम महान नाम को। तुम आमान को प्रेम करी आज शुभ प्रभात देखिया पाई देल।
तुमर गौरव तुमर प्रशंसा तुम स्तुति वंदना करिया पाए सुंदर सुजोग देल तुम निकट पड़ते पाए सुंदर सुजोग देल तेणु तुम पवित्र महत नाम को धन्यवाद दिए विशेष प्रार्थना करे परिचालन करथुवा सिस्टर को पाए तांको परिवार पाए ए पिता तांको तुम व्यवहार करे आणुछ जो माध्यम रे ए प्रकार व्यवहार करो एवं तुम आशीर्वाद र पात्र पाए सहाय सब विशेष प्रार्थना करे प्रभु आज आमान को सुंदर भावे वार्षिप रे करे नहीं सिस्टर को द्वारा प्रभु तुम्हें गौरवान्वित प्रशंसान्वित ही अच्छे मैं विश्वास करो तांको परिवार प्रति तुम विशेष आशीर्वाद करो तुम्हें प्रभु सहाय सबते आशीर्वाद करो परिवार मध्य यदि कौन समस्या था असुस्थता थाए तुम्हें प्रभु तुम रक्त दिया हस्त स्पर्श कर प्रभु तुम्हें सुस्थता दियो समस्या को दूर विशेष प्रार्थना करे प्रभु वाक्य नहीं आसुवा तुम दासों तुम्हें तांको सम्मुख रखी तुम्हें कथा एवं जूम रे जेते लोक जड़ित हो पिता समस्त प्रति सहाय जे प्रकार आम तुम से जीवंत वाक्य को शुणी प्रत्येक व्यक्तिगत जीवन को पारिवारिक जीवन को मांडलिक जीवन को सजाड़ी कर आमान को प्रभु तो निकटवर्ती कराए प्रभु सब वाक्य से वाक्य को जो प्रकार संचय कर विशेष प्रार्थना कर दासों प्रति आशीर्वाद दासों परिवार प्रति सहाय जुमरे जेते लोक जड़ित समस्त तुम्हें आशीर्वाद जो मैंने जड़ित जो मैंने पर्यंत जड़ित ए जूम माध्यम प्रभु आम आशीर्वाद पात्र पिता भौणी प्रभु अनुरोध कर असुस्थ अच्छी तुम्हें सुस्थ कर आरोग्य कर रक्षा कर निकट गौरव समर्म स्तुति बंधना तुम्हें पाओ जीवंत जीश्व पात्म चंत मागुच आमीन बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपण बजर सहित समस्त विषय नहीं प्रार्थना करथिबारु प्रभु आपण को बहुल भाव में आशीर्वाद करंतु आमे इस समय रे वाक्य सुनिबा पाई जिबा जे प्रभुकर दास आसंती अनेक थर आमे तांको मुखर आमे वाक्य सुनिछु अति सुंदर भाव से वाक्य कहती एवं से अनेक शिक्षा दियंती जे शिक्षा द्वारा कि अनेक आत्मा प्रभुकर निकटवर्ती हुअंती से खाली जे ऑनलाइन रे कहंती ताहा नुहंती ऑफलाइन ऑनलाइन रे से प्रभुकर वाक्य शिक्षा दी आज पर्यंत से आसुअछंती से आमानकर केही नुहंती आमानकर रेप आलोक अरुण आलोक महापात्र कटक से जड़ित अच्छा मु प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे मु ताहांको स्वागत करे से सम्मुख को आसीबा समय आमे समस्त करताल सहित स्वागत करिबा कारण आमे ऑनलाइन रे करथिबारु आमे ताहांको किछि उपहार देई पारु नाहु किंतु करताल देई आमे ताहांको धन्यवाद अर्पण करिबा आज्ञा प्रेज द लॉर्ड समय आपण वाक्य परिवेशन करिबा है बहुत धन्यवाद आउ मुझे प्रकार सब बळे कहि आसीची एबे भी कहूची जे करताळीर योग्य मु नुहे मात्र समस्त करताळीर समस्त गौरवर समस्त प्रशंसार समस्त संभ्रमर अधिकारी केवल आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्ट अटंती आउ सब गौरव सब महिमा सब प्रशंसा जुगे जुगे ताहांकर हे आसु ए समय रे आमाने परमेश्वरर वाक्य मध्य को जिबा आ वाक्य मध्य को जिबा पूर्वरु आसु आमाने आउ थरे प्रार्थना करिबा मंगलमय परमेश्वर प्रभु आमे तुम नाम धन्यवाद करूछु महिमा करूछु प्रशंसा करूछु कारण तुम्हें महान और सत्य परमेश्वर तुम्हें आमान के दया करिछ केते अनुग्रह करिछ प्रभु आमान को बही आनिछ सेते आमे तुम नाम गौरव करूछु पिता आमाने प्रार्थना करूछु ए उपासना रे तुम्हें आमान को सहवर्ती ईश्वर हो तुम वाक्य प्रचार करबा समय प्रभु तुम्हें आम प्रत्येक निकटवर्ती हो तुम्हार वाक्य प्रभु तुम्हें उच्चारण करो और तुम्हें सफल करो जे प्रकार प्रभु आज तुमर मनर कथा मैं समस्त जानबू बुझेबू और तुम निकटवर्ती हेबू से तुम्हें दया कर
शैतान और तार समस्त चतुराई को आम प्रभु जीशु नाम अग्राह्य करुछु। केवल प्रभु तुम उपस्थिति और गमनागमनकारी शक्ति आम प्रत्येक निकटवर्ती प्रभु जीशु नाम मागुअछु आमेन। आम मानकर प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ शांति दया अनुग्रह सदा काल आपण प्रत्येक जन प्रति बर्तु। पुणी उपस्थित प्रत्येक जन को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जनाए। आज आमे माने जो अंशर चिंता करिबा ताहा आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय आउ तार 15 पद। माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय आउ तार 15 पद। से सेमानंकु पचारिले किंतु मु किए बोली तुम्हे माने कौन कहुअछ? यस ए स्थान लिखा जाए से मान को पचारले किंतु मु किए बोली तुम्हें माने कौन कहुअछ। आ माने ए अंश को चिंता करिबा पूर्वरु मु किछि आपण मान को कहिबा को चाहे। आ माने समस्त जानिछु आ समस्त प्राय प्रार्थना करिबा समय एक उक्ति को व्यवहार करिथाउ जे प्रभु आमे तो ये सबु विषय प्रार्थना कलु किंतु आम इच्छा नहीं मात्र तुम इच्छा सफल है। पवित्र बाइबल मध्य आम मान को शिक्षा दिए जेबे आमे माने कौन सी विषय ताहांक इच्छा अनुसार मागी थाउ तेबे से जे आम मान को प्रार्थना सुनंती ओ आम मान को उत्तर दियंती एहा माने जानिछु। आज रे प्रातः काल रे आमने टिके समय चिंता करिके देखु जे आमे माने जिते सब विषय प्रार्थना करूछु कौन वास्तव रे से समस्त मध्य रे परमेश्वर इच्छा जड़ित अच्छी। आमने जहाँ सब मागुछु आमने जो सब विषय कंटिन्यूअसली प्रार्थना करी आसुछु कौन ईश्वर से समस्त विषय संतुष्ट अछंती। किछि दिन तळर कथा मु ऑनलाइन रे गोटे मीटिंग देखुथिली आ से मीटिंग रे जने भाई प्रचार करी कहूथिले जे प्रभुंकर वाक्य को आपण मान जीवन में उच्चारण करंतु जे प्रकार से वाक्य आपण मान जीवन में सफल हो 100 ରୁ 100% ठीक। किंतु ता सहित से लोक मान को मध्य किछि प्रोफेसी गुडा को कहूथिले जो प्रोफेसी गुडा को मध्य गोटे प्रोफेसी थिला जे आपण आ आपणकर पूरा परिवार बहुत शीघ्र कनाडा माइग्रेट होछि। लोक माने एते जोरे डेई डेई की आनंदित हेले विश्वास करंतु मु गोटे मिनिट पे भाबिली कनाडा रो वीजा मिलला बोली भाववादी जनक कहिले बा प्रभु को लोक जनक कहिले ना अनंत जीवन रो सुनिश्चितता प्रभु आपन दउचंदी बोली कहिले जे ए लोक माने एते बेसी आनंदित होउछ। विश्वास करंतु अनेक समय रे आमान को प्रार्थना रो केंद्र आमे माने ही थाउ। आमे प्रार्थना करि थाउ निज पाई निजर सुस्थता पाई निजर सुरक्षा पाई निजर आवश्यकता पाई किंतु प्रभु कौन इच्छा करूछंती से विषय आमाने केबे खोजी न थाउ। केवल आमान को जेहेतु सिखा जाई अछि तेनु करी आमाने प्रार्थना करी कहितो प्रभु मो इच्छा नाही मात्र तुम इच्छा सफल हो। विश्वास करंतु यदि आमाने प्रभुंकर इच्छा खोजी की प्रार्थना करि थांतु तेबे बाइबल मध्य प्रभु हमको अनेक विषय कहि छ जो विषय आमान को प्रार्थना करिवार आवश्यकता अछि। सबुठ प्रथम कथा बाइबल मान को शिक्षा दिए प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले माग से तुम मान केते अधिक न पवित्र आत्मा देबे। एंड पवित्र आत्मा ए शेष दिन लोक माने जे आम माने से पेंटिकस्ट दिवस ठार आरंभ करी देखि आसु हम प्रत्येक जनक पे एकांत आवश्यक। काहे की आवश्यक कारण प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजे कहले मु जिबारे तुम मान मंगल कारण मु गले तुम मान को पे से सहायकारी को पठेई देबी से आपणारो किछि कहबे नहीं मात्र मो ठार जहा सुनिबे तहा से तुम मान कहे। अतः यदि पवित्र आत्मा मान को जीवन में अच्छी आम मैंने प्रभु जीशु सहित कन्स्टांटली कनेक्शन ले अच्छु। यदि आम पवित्र आत्मा द्वारा चालित होउछु आम ईश्वर वाक्य द्वारा चालित होउछु। से परमेश्वर वाक्य लिखा जाए रोमियो 8:14 जो माने ईश्वर आत्मा द्वारा चालित हुअन्ति से माने ईश्वर संतान। बट आज आम जिते लोक ये उपस्थित होने केते जन प्राणपण करुचु केते जन लागी पड़ीचु प्रार्थना करिबारे केते जन एकांत चित्तरे प्रार्थना करुचे प्रभु मते आपनक उपस्थिति मते आपनक प्रतिज्ञार पूर्णता मते पवित्र आत्मा द्वारा चालन हबाकु सिखांतु आ मते पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण। गत दिन मानकर जतले संबलपुर जाइथिली मु सेठी कहूथिली ईश्वर बहुत विश्वस्त अटंती आ से एते विश्वस्त अटंती जे आमे माने अनेक समय न मागिले मध्य से अजाचित भाव रे आमान को अनुग्रह दान करिथा।
ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିଥାଉ, ଜଣେ ଋଣ ନେଇଥିବା ଲୋକ ଆଉ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଇଯାନ୍ତି ନା, ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଇଯାନ୍ତି, ସେ ଋଣ ନେଇଥିବା ଲୋକଟି ଋଣ ଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ଯେମିତି ଆଭଏଡ କରେ, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଭଏଡ କରିଥାଉ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଆଭଏଡ କରିନଥାଉ, ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆଭଏଡ କରିଥାଉ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଭାବେ, ଚିନ୍ତା କରେ ଆଉ ବହୁତ ଭୟଭୀତ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଦିନେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ କଥା କହିଲେ, ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଲାଜାର ନାମକ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ମଲା, ସେ ଯେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲା, ଧନୀ ମଲା, ସେ ନର୍କରେ କଲବଲ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଟିକେ ଲାଜାରକୁ ପଠାଅ, ସେ ଆପଣ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି ଟିକେ ପାଣିରେ ବୁଡେଇ ମୋର ଜିଭ ଟିକେ ଓଦା କରିଦଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଅବ୍ରାହମ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଇପାରିବନି, ଏଠୁ ସେଠିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇପାରିବୁନି, କି ସେଠିକାର ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଆଜି ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢି ଜାଣିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଥରେ ନର୍କରେ ପତିତ ହେବେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ କେବେ ବି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଉଠା ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମୁଁ ଯେ ପ୍ରକାର ନର୍କରେ ପତିତ ନ ହୁଏ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏଇ ଦିନ ଠାରୁ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତୁମ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଚାଲିବାକୁ ଶିଖାଅ। ଆଉ କେତେ କାଳ ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟରେ ମାଗୁଥିବା, କେବେ ଆମମାନେ କହିବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ବାଇବଲ ଭର୍ସ ଘୋଷି ଘୋଷିକି କହିଛି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜର ଅଭିଳାଷକୁ କୃଷରେ ହତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ କିଛି ହତ କରିନି, ଆଜି ବି ମୁଁ ନିଜ ଅଭିଳାଷରେ ବଞ୍ଚିଛି, ମତେ ଦୟାକରି ଏଥିରୁ ବାହାର କରିକି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ବି ଶାରୀରିକ, କାରଣ ତୁମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈର୍ଷା ଓ ବିବାଦ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ଏବେ ବି ଶରୀରର କର୍ମ ଅଛି, ସେଠି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 16 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିନା, ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛି, ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମ ମାନଙ୍କ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଛି, ଯଦି ଆମମାନେ ଫଳ ଫଳିଛୁ, ତେବେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆମମାନେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେଉ। ଆମମାନେ କେତେ ଲୋକ ଡେଲି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ନାମ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ନ ହେଉ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯାହା ମାଗି ଆସିଛୁ ନା, ଏ ସବୁ ବିଷୟ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ ମାଗି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ମାଗିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ବିଷୟ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତମ ଭାଇ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ପାପ କରିଛି, ଆଉ ସେ ଆସି ତମକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ, ତେବେ ତୁମେ ମାନେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ସେ ଦିନ ଭିତରେ 70 ଥର ବି ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ, ପୁଣି ଆସି ତୁମକୁ କ୍ଷମା ମାଗେ, ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ବୁଝିଗଲେ, ବାପରେ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟର କଥା। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଢେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ଯେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତମଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ କେତେ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବି ଅଛି, ସେଇ ଅବିଶ୍ୱାସର ମୋର ଟିକେ ପ୍ରତିକାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଣେ ସେ ବାଳକ ଠାରେ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଠାରେ ଗୋଟେ ଘୁଙ୍ଗା ଭୂତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ବି କରିପାରିଲେନି, ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, କଣ କହିଲ, ଯଦି ପାରୁଅଛ? ସେ ବାପାଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛୁ, ତାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଜଣେ ମିରାକିଲ ମେକର। କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଲିଫ୍ଟ କରିବାର ଲୋକ। କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କେବଳ ଭକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଗାଇବାର ଈଶ୍ୱର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି, ତମମାନେ କଣ କହୁଛ? ତମମାନେ ମତେ କଣ ବୋଲି ଚିହ୍ନିଛ? ତମମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ କଣ ବୋଲି ମୋର ପରିଚୟ ପାଇଛ? ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯାହା ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ କିଏ ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ କଣ କହୁଅଛ? ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଅଂଶକୁ ଭଲସେ ପାଠ କରୁଛୁ,
माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय 13 पदर आम पढ़ी आसुचु पवित्र बाइबल लिखा जाए जो प्रभु जीशु पचारे लोक माने मो विषय कौन कहउचंती से स्थान रे एही प्रकार लिखा जाए एथिरे से माने कहिले केही केही कहंती बाप्तिजक जोहन केही केही कहंती एलियो आउ केही केही जिरिमेय अबा भाववादी मानक मध्यरु जणे आपण मान टिके स्मरण करंतु जेतबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेई नथिले से समय बाप्तिजक जोहन आसिले से समय बाप्तिजक जोहन प्रचार करी कहबाकू लागिले जे मो उत्तर जे आसुनी से मो ठारू मध्य श्रेष्ठ ताहांक निमंते प्रस्तुत हुआ लोक माने आसी बाप्तिस्म नेले तथापि से माने प्रभु जीशु को चिन्हले नाही आपण मान टिके स्मरण करंतु पुरातन नियम रु पुरा काल रु ईश्वर प्रभु जीशुंकर आगमन विषय केते प्रतिज्ञा देइथिले बाइबल कहे अनेक से मान जीशु ठारे विश्वास करुथिले किंतु जीशु किए बोली से माने चिन्ह पारले नाही से माने आकाश रे चिन्ह और लक्षण गुडिक देखिले तथापि से माने चिन्ह पारले नाही जे प्रभु जीशु किए से माने आज कहउचंदी हुए तो ये भाववादी मानक मध्यरु जणे हेई पारंती आज प्रभु जीशु आपन को मते पचारंती आम माने कोन चिन्हिचु कि से किए आम माने कोन जानिछु कि से किए एई स्थान रे एई प्रकार लिखा जाए माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 16 अध्याय 16 पदरे से सिमोन पीतर उत्तर देले आपण ख्रीष्ट जीवंत ईश्वर पुत्र एथिरे जीशु ताकू कहिले उत्तर देले हे जुनुसर पुत्र सिमोन तुम्हें धन्य कारण मनुष्य तुम्ह निकट रे यह प्रकाश करी नहीं पर मोहर स्वर्गस्थ पिता यह प्रकाश करी अछंती प्रभु जीशु कहउछन तुम्हें धन्य कारण मोर बापा तुम पाखे मत जी बोली प्रकाश कर तुम्हें ताहा बोली ग्रहण कर आज आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट कौन आज आम मान प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए आज अनेक समय आम मान प्रार्थना ये कहीं रही जाए जे प्रभु मो जीवन में बहुत प्रॉब्लम अच्छी प्रभु मो जीवन में बहुत दुख अच्छी प्रभु मो अकाउंट रे किछि पैसा नहीं प्रभु मु आज कौन खाइबी प्रभु मु आज कौन पिंधिबी प्रभु आज दिनटा मु केमिति काटिबी आमान को प्रार्थना केवल एइठी कहीं रही जाए मोर प्रिय माने आमने कहीं न प्रार्थना करी कहू प्रभु तुमे जे आपना को मो निकट प्रकाश करिएछ मु सेथि पय तुम नामर धन्यवाद करूछि प्रभु मु तुम नामर गौरव करूछि कारण मु जते बेले भरोसा ही नथिली तुमे मो साक्षात रे आपना को प्रकाश करी मोर भरोसार स्थल स्वरूप होइछ जो लोक माने वास्तव रे प्रभु जीशु को परिचय पाई से माने धन्य जोहन लिखित सुसमाचार तार 4 अध्याय जोहन लिखित सुसमाचार तार 4 अध्याय आउ तार 10 पदरे एही प्रकार लिखा जाए जीशु ताहा पढ़ंतु जीशु तांको उत्तर देले ईश्वरଙ୍କ दान ଓ ମୋତେ ପିଇବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି ଯେ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ସେ କିଏ ଏହା ଯେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତ ତାହାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ମାଗିଥାନ୍ତ ଆଉ ସେ ତୁମ୍ଭକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଦେଇଥାନ୍ତେ। प्रभु जीशु कहउचंती जे तुमको मागुचंती से किए बोली तमे जदि वास्तव रे जानि थांत तमे ताहांकु मागी थांत आ से तुमको जीवंत जल देइथांत। आज मु आरंभ रु कहली जे हम माने अनेक विषय रे प्रार्थना करी किंतु ए आत्मिक जीवन विषय रे हम माने प्रार्थना करी न आत्मिक जीवन प्रार्थना बहुत कम समय पे हे किंतु जगत रे हम माने जो सब विषय रे क्लेश भोग करू अछु से विषय रे प्रार्थना कंटिन्यूअसली दिन जाक आमानकर नैवेद्य ईश्वर के सम्मुख रे रखा हुए ना केवल आमान को प्रार्थना रखाए थे प्रभु मते आपण उठेइबे ना मते आपण उठेइबे ना विश्वास करंतु प्रथम सामुएल पुस्तक तार 3 अध्याय और तार 1 पदरे लिखा जाए से समय रे परमेश्वर वाक्य दुर्लभ थिला और प्रकाश्य दर्शन न थिला से समय रे परमेश्वर सामुएल के सहित कथा हेले आ बाइबल कहे परमेश्वर निजे सामुएल के संग रे रहिले आ ताहांकर मुखर कोनोसी वाक्य को तळे पड़िबा को देले नाही सेतिरे दान ठारू बेरसबा पर्यंत समुदाय लोक जानिले जे यस परमेश्वर प्रभु सामुएल को भविष्य वक्ता करी नियुक्त करी अछंती
आम प्रभु सहित रहा आम प्रभु सहित रहा आम प्रभु सहित बंचिबा जगत जानिबो जे एही जीवन ठारे एहांक ठारे ईश्वर को उपस्थिति अछि। आपण मान टिके स्मरण कर रीति अनुसार यीशु को नेकी तांगर बापा माँ जेरूशलेम मंदिर को आसे आ से स्थान रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट रही गले तांगर बापा माँ माने भाबिले से बोधे आम पड़ोसी मान सहित बा प्रियजन मान सहित यात्रा करू अछि आ जते बेले से माने प्रभु यीशु को पाइले नहीं से माने पुणी फेरिकी आसिले आ यीशु को जेरूशलेम मंदिर रे शास्त्रज्ञ मान सहित कथा होतबार देखिले सेतरे से माने ताहांको पचारे बाबा रे तुम मो प्रति एमती काहे कलु प्रभु यीशु उत्तर करी कहले तमे कोन जानि न कि मोर बापांक घरे रहिबा मोर कर्तव्य अटे। से स्थान रे हेत प्रभु यीशु जे केवल से जेरूशलेम मंदिर विषय कहउचंती बोली माने भाबी परिबा किंतु जेतेबेले माने बाइबल को आहुरी अधिक पढ़िबा सेतेबेले आमे बुझी पारुछु जे परमेश्वर वाक्य कहूची जे तुम मानक शरीर ईश्वर मंदिर अटे अते प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउचंती एठी रहिबा मोर कर्तव्य अटे आ एठी रहिबा पाई हेले आम मानकु प्रभु यीशु द्वारा सूची पवित्र होई ताहांक वाक्य रे स्थिर रहिबा को हेबो ताहांक निकट रे मागिबा को हेबो जे प्रकार प्रभु यीशु ए समीरणीय स्त्री को कहउचंती जदि तुमे जानि थांत तबे तुमे मागी थांत आ मु तुमको जीवंत जल देई थांती जो जलर निर्झर तुम मध्य सदाकाल बहु थांता। प्रभु यीशु आम मानकु गोटे आज्ञा देकी जाइछथि गो एंड प्रीच आमे कोन प्रीच करिबा आमे कुआडे जिबा आमे तो अभी पर्यंत आत्मांक द्वारा चलिलु नहीं अभी पर्यंत तो ईश्वर वास्तव परिचय को बुझिलु नहीं सेति पे आज दिन रे अनेक प्रचारक माने बाहरी चंती जो माने कहंती यीशुंक पाखु आस तोर किडनी रोग भलो हे जिवो यीशुंक पाखु आस तो जीवन समस्या दूर हे जिवो लोक माने आसंती किछि काल उतारे प्रभु तांका बाटरे ए लोक तांका बाटरे कारण हीलिंग हुए ही नहीं। मो अनुभव जने भाई को जानिछि जेतबे डॉक्टर तांको कहला जे भाई आपण आ किछि घंटा पर मरी जिवे सेतबे सेमाने स्वजातीय लोक माने नथिले सेमाने आसी गिरजा घर बारंडा रे पड़ी रही जोरी डॉक्टर कहला आपण 4 मास 4 दिन 4 किछि घंटा बंचिबे नहीं से लोक 8 मास बंचिला से 8 मास बंचिबा भितरे तार घर जेकी यीशुंकर वाक्य पहुंचिला बाइबल दिया गला आ काथरे बाइबल वर्स गुडा को लागिला 8 मास पर से भयंकर मृत्यु हैला विश्वास करन जो दिन मृत्यु हैला से दिन से बाइबल से कांथरे लागितबा बाइबल वर्स सब रास्ता ऊपर पड़िथिला काहे की पड़िथिला कारण हम माने एमितिया प्रचार करलु जो प्रचार विषय बाइबल केबे शिक्षा ही दिए नहीं पवित्र बाइबल कहे से जहा को इच्छा करे ताको सुस्थ कले नॉट ऑल मते गोटे कथा कहंतु प्रभु यीशु जेतबे जगत रे थिले कोन प्रत्येक मृत व्यक्ति मान को उठेई थिले कहा को कबर दिया गला नहीं बट एई दिन रे लोक माने जे माने एक्सपेक्ट को मरी जाई जे उठेई दियंतेनी प्रभु काहे कि उठेइबे से किंतु शेष दिन रे उठेइबे कारण पवित्र वाक्य रे लिखा जाए से जोहन लिखित सुसमाचार तार 17 अध्याय आ तार 3 पद रे आ एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भको तुम्भर प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे शेष दिन रे प्रभु से मान को उठेइबे आ अनंत जीवन पुरस्कार मध्य देबे किंतु जेहेतु आज आम माने सेही यीशु को प्रचार करूना हूं जो यीशु को ईश्वर आम मान के निकट प्रकाश करियेछंती एथि निमंते सेही ख्रीष्ट प्रकाशित होउनांती जो ख्रीष्ट प्रकाशित हेबार आवश्यकता अछि केही जने मो निमंते पाठ करिवे कि जोहन लिखित सुसमाचार तार 3 अध्याय आ तार 36 पद जे पुत्रंक ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन प्राप्त होइअछि मात्र जे पुत्रंक अमान्य करे से जीवन देखिब नाही किंतु से ईश्वरंक क्रोधर पात्र होई रहिथाए। बाइबल कहूची जे केही पुत्रंक ठारे विश्वास करे से आउथरे कहंतु जे केही पुत्रंक ठारे विश्वास करे से अनंत जीवन
କୁହନ୍ତୁ ଯେ ବାଇବଲ ପଢିଲେ ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ବାସ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ କହିବା ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବି କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଆଇ ୱିଲ୍ ହିଲ୍ ୟୁ। ବଟ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 14 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ପତିତ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବା ଆଉ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଚିର ଆବାସର ସ୍ଥଳକୁ ଫେରି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ଦତ୍ତ ହେଲେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ଅନ୍ଧକାରରେ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟାରେ ବସିଥିଲୁ, ଲୋଭ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ବସିଥିଲୁ, ଆମମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଜାବାଚ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ ଏହି ଜଗତରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଲେଶ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ, ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଏ କଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ସେପଟେ ଥାଉ, ଖାଲି ଉତ୍ତମ ମଙ୍ଗଳଦାନ ଦୟା ଏତିକି ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ତମ ପାଇଁ ଖାଲି ଦାନ ଉପରେ ଦାନ ଦଉଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ସୁନାରେ ତିଆରି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ସିଲଭର କଏନରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 1 ପଦ ଦଉ। ରୋମିଓ 12:1। ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା ହେତୁ ବିନତି କରୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଶରୀରକୁ ସଜୀବ, ପବିତ୍ର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କର, ଏହା ତ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଉପାସନା। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତେବେ ଏଇ ଶରୀରକୁ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। এই স্থানে গোଟିଏ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଜି ସବୁ ୱାର୍ଡ ଯାଉନି, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଭାବରେ। ଆମେ କେମିତି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିପାରିବୁ? ପବିତ୍ର ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ଯୁବା ଲୋକ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣ ପଥକୁ ପରିଷ୍କୃତ ରଖିବ? ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର, ତୁମ ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣ କରିଅଛୁ, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଚାଲୁଅଛୁ, ଆମମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର, ସଜୀବ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହୁଁ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆମମାନେ କେବେ ବି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ କେବେ ବି ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ନଥିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ, ଖାସ କରି 1 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦ ପରେ ପଢିବେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ এই ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ରୀୟ ମାନଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନଥିଲା ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ବିନଷ୍ଟ କଲେ। ଏହା ଜିହୁଦାଙ୍କ ପତ୍ର ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 5 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅତଏବ ଯଦି ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ମତେ କେବେ ବି ତାହାଙ୍କ ବିଶ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଲେ, ଯଦି ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆପଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇନୁ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ରାଜ୍ୟରେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଆମେ ଏଠି ଯେମିତି କହୁଛେ ୟେସ୍ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, এই দিନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସିଲା ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ର୍ୟାଲିରେ ପୁରା ଓଡିଶା ଭାରତ ବର୍ଷ କମ୍ପିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ର୍ୟାଲି ହେଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ସର୍ଭିସେସ୍ ହେଲା, କଣ ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ।
ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଏ। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 21 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଯାଏ, ଯେପରି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ହେ ପିତା ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରକାର ମୋ ଠାରେ ଅଛ ଓ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଠାରେ ଅଛି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେ ମତେ ପ୍ରେରଣ କଲ ବୋଲି ଜଗତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରୁନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ କେକ୍ ବାଣ୍ଟେ, ମୁଁ କେତେ କାହାକୁ ଗସ୍ପେଲ ଦିଏ, ମୁଁ କେତେ କାହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ ବାଣ୍ଟେ, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ବି ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁ ମତେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ, ତାହେଲେ ତୁ ମତେ ମାଗିଥାନ୍ତୁ। ଆମମାନେ ଯେହେତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହୁଁ, ତେଣୁକରି ଆମମାନେ ଏବେ ବି ଆପଣ ସୁଖାଭିଳାଷରେ ଦିନ କାଟୁଛୁ, ଆପଣ ସୁଖାଭିଳାଷ ନିମନ୍ତେ ମାଗୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ନଗର ଲୋକମାନେ ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ଜିଖ୍ୟାରିୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ, ତମେ କଣ କହୁଛ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର, ଆପଣ ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ଏଇଟା ମଣିଷ ତତେ ଶିଖେଇଲେ ବାବୁ, ମୋର ବାପା ତୋ ପାଖରେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଉଛୁ। ମତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ? ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ନେଲୁ କାରଣ ଆମମାନେ ପାପ କରିଥିଲୁ, ପାପର ବୋଧ ପାଇଲୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ କେତେ ପାପ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୋଉଥିରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଇଏ ଆମର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। କେହି ଜଣେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ପାଠ କରିବେ କି ଗାଲତୀୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 5 ପଦ। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ଆମେନ୍। ଚାରିପଦ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ସାର୍ 1:4। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଣ୍ଡ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାପ୍ତିସ୍ମର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସେ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ହେଲା, ଇଏ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର। ଆଜି ଆମମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଆପଣାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇନା। କାରଣ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ବାଣୀ ସଦାକାଳ ଥାନ୍ତା ଯେ ତୋ ଠାରେ ମୋର ପରମ ସନ୍ତୋଷ। ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଉଠେଇବେ ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର 25 ପଦରେ କୁହାଯାଏ, ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ, ପୁଣି ଯେ କେହି ବଞ୍ଚେ ଓ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ କଦାପି କେବେ ହିଁ ମରିବ ନାହିଁ। ଏହା କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନେଇ, ସେଟା ହଉଛି ଇଟର୍ନିଟି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ଆଉ ଏଇ ଶେଷ ଦିନର ଲୋକମାନେ ଯେ ଆମମାନେ ସେଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକେଇ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଦୌଡୁଛୁ। କେତେ କାଳ ଦୌଡିବା? ଆଇବ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ମାତାର ଗର୍ଭରୁ ଉଲଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଉଲଙ୍ଗ ହେଇ ଫେରିଯିବି। କିଛି ନେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଏଇଠି ଆମେ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ବୁଣିଛୁ ତାହା ଆମ ମାନଙ୍କର ପଛ ଧରିବ। ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ,
जो माने प्रभु रे थाई मरंती से माने धन्य कारण से माने अपना अपना कर्म रु विश्राम पाइबे और से मान को कर्म से मान को अनुगामी हेबो। आज एठी हम माने जहा जहा बुणुछु ना मोर प्रिय माने से दिन स्वर्ग राज्य रे अबा नरक राज्य रे अबा से विचार स्थान रे ताहा मान को पछरे छिड़ा है। मु अनेक लोक मान को देखी छी, मु सब बेले एटा कहे आज दिन जेहेतु फेसबुक व्हाट्सएप रो जुग लोक माने बहुत लोक सहित चैटिंग करती एंड चैटिंग हो जते टिके चैटिंग टा अन्य दिग को पळाए संग संग डिलीट मार दियंती जंती केही देखिबेनी। आमे व्हाइट कलर लोक माने हमर किछि भूल नहीं, आमे पूरा पवित्र लोक माने ठीक ही जानिबेनी सत किंतु से दिन विचार सिंहासन निकट रे से दिन प्रभुंकर सम्मुख रे से गुडी काम पछे पछे गोडौथबो आमे कहथबो जा जा मोटू दूर को जा से कहबो नाइ रे बाबू आउ जीबिनी जहा तू गुणीचु मु तो पाखरे ही रहिबी। प्रभु जीशु मान को मध्य को आसिले से आपना को प्रकाश कले जे मु से जीवनदायक जल अटे, मु से जीवनदायक आहार अटे, जे माने मो पाखु को आसନ୍ତି मु से मान को केबे भी बाहर करि देबी नाही। आमने प्रभु जीशु को विषय शिखुचु जे से डाकुचंदी मते हे सानपल भय कर नाही कारण तुम मान को से राज्य देबा पई पितांकर परम संतोष। किंतु आम माने केवल मन रखुचु जीसस इज माय हीलर, जीसस इज माय रिडीमर, जीसस इज माय एवरीथिंग। सत कथा किंतु से केवल हीलर नुहंती, से केवल रिडीमर नुहंती। एंड आमे जोटा को रिडीमर बोली भाबुचु को सेंस रे भी रिडीमर बोली भाबुचु सेटा विषय में चिंता करिवार आवश्यकता अछि। प्रभु जीशु आपना को आमान के निकट प्रकाश करियछंती जे केही मो ठरे अछि से कदापि केबे हे मरिबो ना। आज यदि आमने वास्तव रे प्रभु जीशुंकर परिचय पाइछु एवं ताहांक सहित स्थिर हे कि अछु तेबे आम माने धन्य। मु गोटे छोट कथा कहि शेष कर ठीक है माने यात्रा पुस्तक खोल आमने ए स्थान रे सुनिलु जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहिले एहा मनुष्य तुम निकट प्रकाश करी नै मात्र मोहर प्रेरणकर्ता प्रकाश करी अछि। यात्रा पुस्तक तार 6 अध्याय आ तार 3 पद रे मध्य एही प्रकार किछि लिखा छै। यात्रा पुस्तक तार 6 अध्याय आ 3 पद। आम्भे अब्राहम इसाक और जाकुबंकु सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोली दर्शन देइथिलु मात्र आम्भे अपना जिहोवा नाम रे सेमानंकु परिचय देइ नथिलु। एडी दुईटी ना यूज होछ, गोटे ना होछ एलसदाय आ गोटे होछ यहोवा। ए स्थान वाक्य कहूची जे आम्भे सेमान का निकट रे अपना को सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोली परिचय दी। सेथि निमंते आपण माने रोमियो पुस्तक तार 4 अध्याय रे पढिबे से स्थान में मध्य अब्राहम को विषय लिखा जाए। पवित्र वाक्य आमान को यही प्रकार शिक्षा दिए जे अब्राहम देखिले से निजे वृद्ध हो जाइछंती, तांको स्त्री भी वृद्धा हो जाइछि। से बुझी गले जे आम द्वारा आउ संतान प्रसव संभव नुह किंतु पवित्र बाइबल लिखा जे जेउ ईश्वर प्रतिज्ञा करि अछंती से जे ताहा साधन करि पारंती एहा विश्वास करि बलवान। जे सेमान के सामने रा किछि पॉसिबिलिटीज नथिला, संदेह करिवार अविश्वास करिवार प्रत्येकटी कारण थिला। सेते बेले अब्राहम विश्वास कले आ बाइबल कहे जे से बलवान हेले। जे इस्राएल लोक मान के समय आसिला जे परमेश्वर आपन को जिहोवा परमेश्वर अर्थात कोवेनेंट कीपर अर्थात नियमर रक्षाकर्ता बोली प्रकाश कले से इस्राएल लोक माने कोनोसी स्थान रे विश्वास करि पाले ना। आपण मान जदि बाइबल को भलरे पढिबे से स्थान रे एही प्रकार लिखा जाए जे परमेश्वर प्रभु इस्राएल लोक मान को मिस्र मध्य बाहर करके आनिले। से मान के सहित ईश्वर में उपस्थित थिला आ से माने पलेस्टिय मान को नगरी रो निकटवर्ती हेले। परमेश्वर निजे कहउचंदी अबि जदि माने युद्ध देखिबे काले एमाने मोठर विमुख हेई पारंती। जो ईश्वर से मान को एते आश्चर्य कर्म देखेले, जो ईश्वर आपना को प्रकाश कले से मान के निकट रे से ईश्वर आज निजे डाउटफुल अछंती जे माने युद्ध देखले काले भयभीत हेई मु से मान को अन्य बाटरे नै खिची
अन्य बाटे नौनु सुफ सागर पड़ला आउ एमाने तो मनीष माने एमाने कहले नाई बाबा नाई आउ हबनी सांग सांग बचसा करने को आरंभ कहले आमे कहिथिलु कि हमको मिश्रीय मानक बंधन रु बाहर करके आण आज अनेक समय आम विश्वासी मान जीवन यही प्रकार से अब्राहम इसाक और जाकुब निकट आपण को प्रकाश कले से माने विश्वास कर स्थिर होई रहिले से निमंते परमेश्वर सबु बेले कहंती आम्भे अब्राहम इसाक और जाकुबर परमेश्वर से इस्राएल लोक मान निकट आपण को प्रकाश कले इस्राएल लोक माने केबे भी ताहां विश्वास कले नहीं से मान को प्रांतर रे विरक्त कले आ मले ए शेष दिन में प्रभु जीशु आपना को आह्वान करके प्रकाश करिए पिता ईश्वर आपना कोलस एकमात्र अद्वितीय पुत्र को दान करिए किंतु आमे माने ताहांकु मोहर अनंत जीवन प्रदान करी ईश्वर भावे ग्रहण करिना हो आमे केवल एहा भावे ग्रहण करिछु यदि प्रभु जीशु अछंती सुस्थता अछि यदि प्रभु जीशु अछंती तेबे पॉकेट रे पैसा अछि यदि प्रभु जीशु अछंती घरे आ रोग नाही यदि प्रभु जीशु अछंती मो पुअर बड़ चाकरी हे जाईछि यदि प्रभु जीशु अछंती मो झियो भलो जगह रे बाहा हे जाईछि यदि प्रभु जीशु अछंती ताले मो घरे संतान संतति अछंती आ मोर संतान गणजित वृक्ष सदृश्य मोर मेजर चतुर्पार्श्व रे अछंती काहे की कौन ईश्वर केवल जगतर विषय दबा पाई आपण पुओ को पठेइथिले कौन एही प्रकार भाबरे से आपण पुत्र को आमान के निकट प्रकाश करी अछंती कौन पवित्र बाइबल आमान को कहि नहीं कौन बाप्तिजक जोहन कहले नहीं एही देखो ईश्वर को मेषशाबक जे जगतर पाप सब बहि नियंती कौन से आम मान को पाप सब बही नहीं क्रूस ऊपर हत हेई नहंती कौन से आम मान को प्रतिज्ञा दे नहंती जे देखो मु आसीबी तो मान को घेनी जीवा पाए आज जेते लोक माने उपस्थित अछु निज को गोटे प्रश्न पचारि के देखु यदि एबे आ 10 मिनिट परे प्रभु जीशुंकर आगमन हुए तुरी ध्वनि आम मान को सुबा जाए आमे माने प्रस्तुत अछु की विश्वास करंतु अब्राहम जानी थिले मोर प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर अटंती से सेथिरे स्थिर होई रहिले इस्राएली लोक माने प्रभु को केबे चिन्हिले नहीं से माने मरले आज जो लोक माने प्रभु जीशु को जानि छन प्रभु जीशु को जानिबार अर्थ प्रथम जोहन पुस्तक लिखा जाए जे केही ताहां को आज्ञा पालन न करी ताहां को जाने बोली कहे से मिथ्यावादी ओ ताहारे सत्य नहीं अतएव जदि मु कहू जे मु जीशु को जानिछि आ ताहांक वाक्य अनुसार चलुछि विश्वास करंतु मु अनंत जीवन रो प्रबल दावेदारी प्रकाश करूछि कि यदि मु वाक्य पालन करूनी प्रभु जीशुंकर वास्तव परिचय मु पाइनी केवल अन्य मानक ठरो जहा सिखिछि अन्य मानक ठरो जहा देखिछि तदनुଯାୟୀ चलुछि विश्वास करंतु आमे माने पढिले जोहन लिखित सुसमाचार 3 अध्याय 36 पद जे माने पुत्रंकर अवज्ञा करंती से माने ईश्वर को क्रोधर पात्र हेकी थांती से माने जीवन देखिबे नै आज आमान टिके निज निज विषय चिंता करिके देखु निज निज को गोटे प्रश्नटे पचारि के देखु जे मो निमंते तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट दत्त है मु कोन तांको ग्रहण करिछि मो निमंते तो सी आसिले आ कहिले भय कर नहीं तुमर शांति हेउ कोन एबे प्रभु जीशुंकर आगमन हेले मु भयभीत हेबी ना मु आनंदित हेबी बाइबल कहे सिद्ध प्रेम रे भय न थाए कारण भय दंड सहित संयुक्त अतः जो माने जीशु को जानी चंती से मानक विषय बाइबल कहे से माने भयातुर आत्मा पाइनांती भयभीत हेबार आत्मा से मान पछरे नाही काहे कि नाही कारण पुत्र से मान को स्वाधीन करिए एंड जदि मु वास्तव में जानिछि जे मो जीशु प्रभु जीशु मते मोर समस्त अधर्म रु मंदता रु मृत्यु रो बंधन रु स्वाधीन करिए छंती तबे मो मध्यरे आ भय नथिबो मु ख्रीष्ट जीशु ठारे आनंद करूथिबी एठी सुख थाउ कि दुख थाउ सेति पई त माने पाउलं को देखिलु कारागार रे अछंती हरिकाठरे बंधा आइछंती तथापि गुण गुण हे ईश्वर स्तव गान करूछंती हम प्रेरित मान को देखिलु विधवा मान को खाइबार दिया जाउथला किछि विवाद हैला प्रेरित माने कहले अन्य लोक मान को दायित्व दियो आमे एठी रहइबा ठीक नहीं हमर कार्य सुसमाचार प्रचार करिबा आज आम माने निज निज विषय चिंता करू बाइबल एते सब कथा मो कहिछि आमे कोन आज भी एते छोटो ही कि रहि जाइछु
न्यून ହେଇକି ରହିଯାଇଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେଲେ ତାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବି କଣ ମାନେ ବୁଝୁନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେଉ, ଜାଗ୍ରତ ହେଉ, କାରଣ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁହନ୍ତି ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ ଓ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟର ସମୁଚିତ କର୍ମର ଫଳ ଆମ ହସ୍ତରେ ଅଛି। ଅତଏବ ସେ ଦିନ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜୀବନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ନିମନ୍ତେ ଉଠିବା ଓ ଜୀବନର ଫଳ ପାଇବା ଓ ଜୀବନର ମୁକୁଟ ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସଜା ହେବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ଅଛ ଯଦି ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଆଠାରୁ ବଡ ଆଉ ଅଧିକ ବିଷୟ ମତେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସଲୋମନକୁ ପଚାରିଲେ କଣ ଦରକାର? ଧନ ନବ? ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ପାଦ ତଳେ ଦରକାର? କଣ ଦରକାର? ସଲୋମନ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ଏଡେ ବଡ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଚଲେଇ ପାରିବି ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ତ ଦେଲେ ତା ସହିତ ଏତେ ବିଷୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଣ ଏଠି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସଲୋମନ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେ କି ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଲେ। ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖୁ ଆମର ରିଲେସନସିପ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛୁ ନା ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବି ବୁଲୁଛୁ? ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ୟେସ୍ ସେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଶେଷ ଦିନରେ ସେ ମତେ ଉଠେ। ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ସେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଦାକାଳ ଆନନ୍ଦ ହେଉଥାଉ। ଆମେନ୍। ଆସୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା। मंगलमय परमेश्वर प्रभु आम तुम नाम धन्यवाद करुछु, महिमा करुछु, प्रशंसा करुछु, गौरव करुछु, स्तुति करुछु, आराधना करुछु, कारण तुम महान और सत्य परमेश्वर। तुम आम मान के तो दया कल, अनुग्रह कल प्रभु, ए पर्यंत तुम आम मान संगे रही आस धन्यवाद करुछु प्रभु। जे प्रकार तुम आम मान प्रति विश्वस्त होइछ से प्रकार प्रभु आम माने मध्य जे प्रकार तुम प्रति विश्वस्त हेबु और प्रभु तुम आज्ञा लंघन करिबु नहीं, तुम विरुद्धाचरण करिबु नहीं, मात्र तुम जो परिचय आम माने पाई अछु जे तुम आम मानकर अनंत जीवन देवाक आसीअछ, तुम आम मान को जीवन पूर्णता देवाक आसीअछ, जे प्रकार प्रभु से आम माने स्थिर रहबु और कौन समय आम मान प्राण विचलित हेब नहीं, से तुम आम मान को दया पवित्र कर, तुम आम मान को सूची कर, तुम आम मान को अपना राज्य निमंते प्रस्तुत कर बोली प्रार्थना करूँ। उपस्थित प्रत्येक जन को कृपा कर, मंदरु रक्षा कर बोली प्रार्थना, अनुग्रह कर आशीर्वाद जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुमर हेउ, प्रभु जीशु नाम रे मागुअछु, आमेन। धन्यवाद। आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। आपण अति सुंदर भावरे जीशु किए बोली तुम्हें माने कौन कहोछ विषय को नहीं अति सुंदर भावरे आमानकु बुझाई अछंती। प्रभु आपनकु बहुल बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु, आपनक परिवार को आशीर्वाद करंतु, आपनक सेवा कार्य रे मध्य प्रभु बहुल बहुल भावरे आशीर्वाद करंतु। आमे प्रिय दासंक दे आमे अति सुंदर वाक्य शुणी अछु। जीशु किए एही कथा आमे शुणी अछु। जेतेबेले से काइसरिया फिलिप अंचल देई शिष्य मानक देई से जाउछंती, सेही समय रे आ शिष्य मानक से पचारुछंती मु के बोली तुमे कोन भाबुछ? के तो कहिले मु बाप्तिजिक जहन, आउ के कहिले एलिया, आउ के कहिले जिरिमिय, आउ के कहिले आउ भाववादी मानक मध्यरु जणे। आउ थरे आउ से पचारिले आउ मु किए बोली तुम्हे कोन कहुअछ? आउ पितर तरतर होई से कहिले कोन? आपण ख्रीष्ट जीवंत आउ ईश्वरंकर पुत्र। आउ से समय रे जीशु तांको कहिले आउ तुमे निजरु कहि ना हो, मोर स्वर्गस्थ पिता एही कथा कहि अछंती। से दिन पितर से ही कथा कहिले आउ ख्रीष्ट जीवंत ईश्वरंक पुत्र बोली। आउ जीशु किए आमे कोन कहू? प्रश्न जीशु किए आमे तांको कोन कहू? मु कहे से आमानकर उद्धार करता, कारण आमानकु उद्धार करिबा पाए से
ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଗାଲାତି ତାର 1:4 ଆପଣ ଆପକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିଦାତା ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗାଇବା କର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ। ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ଅନେକ କଥା ଆମମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସେ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗାଇବା କର୍ତ୍ତା ବା ଜିହୋବା ଜିରି, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥକାରୀ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୋବା ରାଫା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ବିଶେଷ ତ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଜଗତରେ କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା, କୌଣସି ଘୁଘୁ ଦ୍ଵାରା, କୌଣସି କାପ୍ତାର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା, କୌଣସି ମେଷର ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହୋଇପାରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ରକ୍ତ ଦ୍ଵାରା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାପ ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ଆମ୍ଭେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, କାରଣ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କିଏ ଆମେ ଜାଣିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଯୀଶୁ କିଏ ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ବୁଝିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଅଛି। ବାହିକ ସେବା ନ କରି, ଆତ୍ମିକ ସେବା କରି ସେଦିନ 6 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଜା ବାହାରିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ହିଁ ସେଇ ଦୁଗ୍ଧ ମଧୁ ପ୍ରବାହିତ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ 2 ଜଣ ହିଁ ବୁଝିଥିଲେ, କାଲେବ ଏବଂ ଜିହୋସିଅ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ସେବା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରବେଶ କରିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତନା ଦେଇଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆଉ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା।